Hello friends, today we will study about a new topic named articles. आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स तीन तरह के होते हैं। पहला ए, दूसरा एंड तीसरा द। There are three articles used before noun or nouns. They are a, and the. Let's see their uses. The first one, use of a. A is used before common noun beginning with consonant sounding. It is always used before a singular noun. That means it refers to one. Let's see the example. A cow, a girl, a pen, a uniform, a European. Cow begins with the letter C, consonant and sounding also consonant. That is why a cow. A girl, G is a consonant, sound also consonant, and it is a singular noun. Therefore, a girl. A pen, P consonant, sound also consonant, and is a singular noun. A uniform, U is a vowel, but sounding is consonant, and it is also singular noun. So we have used a uniform. A European, E is a vowel as well as U also a vowel. But E is silent and sounding is like U, Y. Therefore, we have used A. See the sentence. This is a pencil. Pencil beginning with P, consonant sounding and a singular word. You are a boy. Boy, singular person. B, consonant and sounding also consonant. That is a box. Box singular, B consonant and sound also consonant. इसी को हम हिंदी में समझते हैं यूज ऑफ ए को हमें कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है। ए का मतलब होता है इंग्लिश में वन, एक, सिंगल। ये हमेशा कॉन्सोनेंट के पहले यूज किया जाता है, जो वर्ड्स की साउंडिंग कॉन्सोनेंट से जैसी हो रही हो उसके पहले, और वो वर्ड मेरा सिंगुलर पर्सन होना चाहिए, यानी किसी एक चीज को रेफर करना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे दिया है ए काऊ, काऊ यानी गाय, एक गाय है इसलिए हमने लिखा ए काऊ। ए क्यों लिखा? क्योंकि काऊ वर्ड शुरू हो रहा है सी से और वो उसकी साउंडिंग भी क कॉन्सोनेंट जैसी है। वैसे ही ए गर्ल, गर्ल एक ही है, जी कॉन्सोनेंट है और उसका प्रोनाउंसिएशन साउंडिंग भी ग कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन जैसी है। ए पेन, पेन भी एक है और प शब्द का साउंडिंग आ रहा है और पी मेरे पास में कॉन्सोनेंट है। प मेरा व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट साउंडिंग। ए यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म की जो साउंडिंग है वो य जैसी है यानी व्यंजन जैसी, जबकि यू मेरे पास वॉवेल है बट उसकी साउंडिंग व्यंजन जैसी है, कॉन्सोनेंट जैसी है, इसलिए हमने यूज किया ए यूनिफॉर्म। ए यूरोपियन, इस वर्ड में ई भी वॉवेल है और यू भी वॉवेल है, लेकिन उनकी जो साउंडिंग है वो कॉन्सोनेंट जैसी है, इसलिए हमने यूज किया ए। कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन एंड वॉवेल्स मीन्स स्वर। सेंटेंस देखें, दिस इज अ पेंसिल, एक पेंसिल है, एक के लिए हमने ए लगाया, पेंसिल का पी पस उच्चारण हो रहा है प, और पी मेरा कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है। यू आर ए बॉय, एक लड़का है तो ए
ब बी कॉन्सोनेंट व्यंजन और उसकी साउंडिंग भी कॉन्सोनेंट व्यंजन जैसी। दैट इज ए बॉक्स, एक बॉक्स है इसलिए ए। बी भी मेरे पास में कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन, और उसका साउंडिंग उच्चारण भी ब व्यंजन जैसा, कॉन्सोनेंट जैसा, इसलिए हमने यूज किया ए बॉक्स। यानी ए को हम उन वर्ड्स के साथ यूज करेंगे जिनकी शुरुआत बिगनिंग कॉन्सोनेंट से होगी, जिसकी साउंडिंग कॉन्सोनेंट जैसी होगी, और जो एक सिंगल चीज को रेफर करेंगे। क्लियर? नाउ वी विल लर्न अबाउट द यूज ऑफ एन। An is used before a common noun beginning with vowel sounding. It is also used before a singular noun that means it refers to one. See the example. An apple. Apple is a singular word beginning with A. A is a vowel. Therefore, we used an apple. Similarly, an ink pot. Ink pot beginning with the letter I. I is the vowel and sound is also like E. Therefore, we use an ink pot. Come to the third one, an honest man. The word begins with H. H is a consonant, but here H is silent and the sounding is like a vowel. O. Therefore, we use an honest man. Last one, an eagle. Eagle is a singular noun beginning with the letter E, which is a vowel, and sounding is also like E, vowel sounding. So we use an eagle. See the sentence. He is an Indian. Indian word begins with I, which is a vowel, and sounding is also like E. So we use an Indian. The last sentence, she is an intelligent girl. Word intelligent begins with vowel I and sounding is like E. So we use an intelligent girl. इसी को हिंदी में देखते हैं कि हम एन को कैसे और कब यूज कर सकते हैं। ऐसे वर्ड्स जिनकी शुरुआत यानी बिगनिंग वॉवल्स से होती हो या वॉवल साउंडिंग वर्ड्स हो और जो सिंगुलर नाउन हो यानी किसी एक चीज़ को रेफर करते हो, ऐसे वर्ड्स के पहले हम यूज़ करते हैं एन। कुछ एग्जाम्पल्स वर्ड्स और कुछ सेंटेंस की हेल्प से देखते हैं। पहले देखिए एन एप्पल। एप्पल जो वर्ड है वो स्टार्ट हुआ है ए से और उसकी साउंडिंग भी अ जैसी है यानी वॉवेल्स स्वर साउंडिंग है, इसलिए हमने यूज़ किया एन एप्पल और वो रिप्रेजेंट भी कर रहा है एक एप्पल को। दूसरा वर्ड है इंक पॉट यानी एक इंक पॉट की बात कर रही हैं। इसकी भी शुरुआत वॉवेल्स से हो रही है आई स्वर और इसकी साउंडिंग भी ई जैसी है, इसलिए एन इंक पॉट। तीसरा वर्ड है एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ पर ऑनेस्ट वर्ड की स्टार्टिंग एच से हो रही है जो कि कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है, बट यहाँ एच साइलेंट है और साउंडिंग ऑ जैसी स्वर जैसी आ रही है वॉवेल्स जैसी, इसलिए हम यूज करते हैं एन ऑनेस्ट मैन। फोर्थ वाला वर्ड देखिए एन ईगल। ईगल वर्ड सिंगुलर नाउन और स्टार्ट हो रहा है ई से जो कि एक वॉवेल या स्वर है हम कह सकते हैं, और इसकी साउंडिंग भी ई जैसी है, इसलिए हमने यूज किया एन ईगल। सेंटेंस ही इज एन इंडियन। इंडियन वर्ड आई से स्टार्ट हो रहा है, उसकी साउंडिंग भी ई जैसी है और इसलिए हमने यूज किया एन इंडियन, और इंडिया एक कंट्री है। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। हम किसी एक लड़की को रेफर कर रहे हैं, वो इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट वर्ड की बिगनिंग है शुरुआत आई से, आई वॉवेल यानी स्वर और साउंडिंग भी ई जैसी, इसलिए हमने यूज किया एन। तो इस प्रकार आई होप आपको समझ आया कि हम एन को कब और कैसे यूज कर सकते हैं।
Now see the use of the. The is used with proper noun or specific names, that means particular names. It is also used with common noun in plural form. See the examples. First one, the earth. Earth is a proper noun. It is a particular name. So we use the with the word earth, the earth. Second one, the Taj Mahal. Taj Mahal is also a proper noun, a specific name. Taj Mahal is one in the world. So we use the Taj Mahal. Third one, the children. Children is common noun in plural form. So we use the children. Similarly, girls, common noun in plural form. So we use the girls. Come to the sentence, the moon shines at night in the sky. Moon and sky both are proper nouns. So we use the with both these words, the moon and the sky. Last sentence, the students are reading the books. Students and books both are common noun but in plural form. So we use the with both these words, the students and the books. इसी को हम हिंदी में देखते हैं कि द को हम कैसे और कब यूज कर सकते हैं। द को हम प्रॉपर नाउन के साथ यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलर नेम्स जिनके जैसे दूसरे ना हो, और द को हम कॉमन नाउन जब प्लूरल फॉर्म में हो तब यूज कर सकते हैं, यानी ऐसे वर्ड्स के साथ यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम कुछ। द अर्थ, अर्थ जो कि एक प्रॉपर नाउन है जिसके जैसा कोई दूसरा वर्ड या दूसरा अर्थ नहीं है, इसलिए हमने इसके साथ यूज किया द। वैसे ही ताजमहल, उसके साथ भी हमने यूज किया द। ताजमहल पूरे वर्ल्ड में एक ही है, यानी प्रॉपर नाउन है वो, इसलिए हमने यूज किया द ताजमहल। थर्ड वर्ड आइए आप, चिल्ड्रन। वो एक कॉमन नाउन प्लूरल फॉर्म में है, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है चिल्ड्रन, इसलिए हमने यूज किया द। वैसे ही गर्ल्स, गर्ल का प्लूरल हुआ गर्ल्स, तो गर्ल्स के साथ भी हम यूज करेंगे द, क्योंकि वो कॉमन नाउन प्लूरल फॉर्म में है। सेंटेंस में देखिए, द मून शाइन्स एट नाइट इन द स्काई। मून और स्काई दोनों एक ही हैं, मीन्स एक मून और एक स्काई, एक से ज्यादा नहीं है, यानी वो प्रॉपर नाउन, इसलिए हमने इन दोनों वर्ड के साथ यूज किया द मून एंड द स्काई। लास्ट सेंटेंस में आइए, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग द बुक्स। स्टूडेंट्स और बुक्स दोनों ही कॉमन नाउन हैं और वो प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए हमने उनके साथ यूज किया द स्टूडेंट्स एंड द बुक्स। तो आई होप आपको यूज ऑफ ए एन और द बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।